So we are discussing this note in when we write the equation for momentum, we have to use the vector law while writing its equation, particularly in numericals. So take the help of vector law to get the right answer. All right, let's see now. There are all the three collisions are further divided in two categories. One is the head-on collision, also called one-dimension collision. First one is इनके लाइन ऑफ जो मोशन है along the same common line से चलते है ना, तो they will be hitting head on. After collision also they will follow that line of motion. Either they may rebound, but line of motion will be same, है ना. उनके जो सेंटर से line of motion जो लेंगे that will be same. Only thing they can move in opposite direction, है ना. कुछ बुक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, है ना. दोनों के वेलोसिटी अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल रहते हैं. इनको दोनों ज्वाइन कर दो, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन नॉर्मल हो गया, तो वेलोसिटीज आर अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल. तो वी आर नॉट गोइंग दैट पॉइंट. एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग. तो वन डायमेंशन कोलिजन हेड ऑन कोलिजन होगा. at the most they can rebound, bounce back हो सकती, but they will not leave that their line of motion. So let's see now. We are discussing the one dimension elastic collision. Elastic collision में what are the 2 points important? Kinetic energy is also conserved. Linear momentum तो सब में conserved है. So this is M1 and this is M2 moving with U1 and U2. Here is the collision taking place. यहाँ पे collision हो गया और ये after collision. This is before. ये collision है बीच में, ये after है. So before collision U1 should move fast so that it should go and hit to this. After that M1 will transfer some of the momentum to M2 and it will slow down. It will move faster. It will get some momentum. Its velocity will be V1. Its velocity will be V2. In case of opposite directions, then we don't have any condition. U1 should be faster and U2 will be slower. But in this case, U1 should be greater in order to go and hit it. So U1, U2 initial velocities, V1, V2 velocities after collision. Okay. Momentum is conserved. Therefore, initial momentum is equal to final momentum. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. इसको थोड़ा M1 वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे और M2 वाले दूसरी तरफ कर लेंगे, तो ये इक्वेशन 1 will convert into this equation. तो momentum conservation की one equation. Kinetic energy will also be conserved since it is elastic collision. So initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Total दोनों बॉडीज की हाफ तो कैंसिल हो जाएगा सभी में. M1 वाला टर्म सीधा ले आए, M2 वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया, तो ये वाले फार्मूला स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, इधर भी एक बार प्लस एक. ये इक्वेशन 4 हो गई, ये 3 है. तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, इसको जो है 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. तो M1 कैंसिल हो जाएगा, U1 माइनस V1 ये कैंसिल हो जाएगा, M2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. दोनों प्लस वाले टर्म बचेंगे. V1
U1 plus V1 is equal to U2 plus V2. तो इसमें U1 वाले U वाले टर्म एक तरफ कर लिए, V वाले एक तरफ कर दिए, तो यहाँ से V2 निकाल लिया, यहाँ से V2 निकाल लिया, U2 को इधर शिफ्ट कर दो तो V2 का रिलेशन निकाल लिया। इसको कभी कभी इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको छोड़ दो अभी, जस्ट वी विल नॉट discuss these points. We will focus on velocity. What we are doing, in fact, we are finding the final velocity. We are deriving the relation for V1 and V2. तो ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में V1 and V2 निकालना है, velocities after the collision निकालनी है, तो that's what we are going to do. ठीक है, तो V2 के लिए क्वेश्चन नंबर, ये जो डिवाइड करने के बाद जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसको V2 निकाल लिया। अभी ये V2 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन में ये V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट की, M1 U1 एज इट इज, ये वाली इसमें, सॉरी यहाँ पर M1 U1 प्लस M2 U2, ये M1 V1 एज इट इज, V2 की वैल्यू लास्ट में पुट कर दी, M2 इंटू होल V2 एज कम हियर। बस इसमें क्या किया भाई, U1 वाले टर्म्स, एक U1 वाला ये है, एक U1 वाला ये है, इसके साथ M2 है, तो U1 कॉमन आ जाएगा, M1 माइनस M2 बचेगा, और ये M2 U2 एक इधर है और M2 U2 एक इधर है माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2M2 U2 हो जाएगा। एंड V1 वाला एक टर्म ये, तो V1 चाहिए था, ये टर्म डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो दिस बाय M1 प्लस M2, दिस बाय M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 6। तो V1 का डेरिवेशन हो गया, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 5 हियर, ये V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो V2 के लिए सॉल्व करो, द सबस्क्रिप्ट इन 6, इसमें सब चेंज कर दो, 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, ये तो M1 प्लस M2 ये तो एज इट इज रहेंगे, दो ही टर्म है इसमें, बाकी ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये दोनों 1 1, या तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करके देखो, या सबस्क्रिप्ट इंटरचेंज कर दो, तो वही आंसर आ जाता है जो सॉल्व करने से आता है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और समटाइम्स डेरिवेशन आएगा तो ये क्लास में कराया गया, दिस इज डन इन द क्लास। एनसीईआरटी बुक में पता क्या है, V2 उन्होंने 0, U2 0 लिया हुआ है, ये पहले से ही बोला है कि डजंट मैटर, U2 0 लेके करते तो ये वाले टर्म बचेंगे, इतना आया एनसीईआरटी बुक में दिस मंथ, बट और इसमें ही आएगा, because U2 0 है, second body is at rest, they have kept it, but sometimes it may be moving, therefore we have done it both moving initially. All right, तो दोनों में देखो डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 है, और यहाँ पर 1 वाला पहले 1 सबस्क्रिप्ट है तो ये 1 है, 2 वाले टर्म्स बाद में है, 2 भी है इधर, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 सबस्क्रिप्ट वाला पहले है, 1 वाले बाद में है, और ये भी चेंज हो गया, M2 माइनस M1 हो गया, जब 2 आ गया तो यहाँ पे 2 पहले आ गया, ये भी 2 और ये वाले टर्म्स 1 हो गए, नीचे तो नो चेंज। Clear? So you have to remember these for problem solving at least. Otherwise, if you don't remember, you have to go back to the basics. One equation of linear momentum, other equation of energy, kinetic energy conservation. Then also you can get the right answer if you don't remember this formula.
ठीक है। So both the results should be remembered. If this derivation is done in the class, they may ask you in the subjective paper. All right. ओके, तो इसमें कुछ केसेस भी दिए हैं, देखो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में if m1 is equal to m2, let it is equal to m, then how much the v1 will come? ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये 2m अपॉन 2m, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो u2 will come, v1 will be equal to u2, और v2 कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा। तो देखो कोलिजन से पहले क्या था, ये u1 u2, कोलिजन के बाद क्या, ओके आई थिंक इट हैज कम, हाँ ठीक हो। ऑलराइट, तो ये वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती, एक की दूसरे को मिल जाती। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, देखो, refer the diagram. Find velocities of two identical bodies after 1D elastic collision. ये 1D है, 1D elastic collision के बाद, बोलो, ये रेस्ट पर थी और ये 10 मीटर पर सेकंड से आके इसको हिट करेगी, और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के मास हैं, क्या होगा? सर 10 वाली रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट वाली 10 में। तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज है ना, हाँ। चाहे तो फार्मूले से निकाल लो, ये वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करके, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी विल कम टू रेस्ट since velocities are interchanged, therefore फर्स्ट बॉडी विल कम टू रेस्ट, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो सेकंड बॉडी के जो वेलोसिटी है 0 है, तो इसकी 0 हो जाएगी। फर्स्ट बॉडी विल कम टू रेस्ट, second body will move with 10 meter per second in forward direction. ठीक है, ऑलराइट। इंटरचेंज माइनस के साथ, सपोज कभी ऐसे दे देंगे तुम्हें क्वेश्चन, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकंड है, तो माइनस के साथ इंटरचेंज होगी u1, तो v1 विल बी -3 एंड v2 विल बी 2, जो भी दिए, तो माइनस के साथ इंटरचेंज करना, ये नहीं कि माइनस गायब कर दो तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16, सेम पॉइंट का, सेम टॉपिक का ही पॉइंट है। टू आइडेंटिकल बॉल्स बेयरिंग्स इन कांटेक्ट, बॉल बेयरिंग्स, एक्चुअली बॉल बेयरिंग्स एक वर्ड है, बॉल बेयरिंग्स मेटल के रहते हैं छोटे छोटे, इन कांटेक्ट विद ईच अदर and resting on the frictionless table are hit head on
one dimension collision by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed v. ये v से आके इसको हिट कर रहा है इन दोनों को. If the collision is elastic, which of the following is possible result? ये दोनों v/2 से चलने लगेंगे या फिर ये दो रुक जाएंगे और तीसरा ऐसे v से चलेगा, या फिर तीनों v/3 से चलने लगेंगे. सेकंड वाला केस. Why not फर्स्ट वाला केस? दोनों v/2 से या ये सर तीनों पहला v/3. पहला वाला सिर्फ दूसरे पे लगाएगा ना, तीसरे पे थोड़ी, और फिर दूसरा वाला तीसरे पे लगाएगा तो एक ही निकलेगा. अच्छा ठीक है, देखो इसको ऐसे करना है एक एक करके. ये पहला वाला ये 1 ये 2 थोड़ा गैप करके कर लो इसको, है ना. 1 ने आके हिट किया तो ये रुक जाएगा, अभी ये v से चलने लगेगा. ठीक है, फिर इसको आके ये हिट करेगा, ये दूसरा वाला रुक जाएगा, तीसरा वाला v से चलने लगेगा. बट अभी जो दोनों पास में है ये दोनों बिल्कुल टुगेदर हैं तो वहीं पे ही रुक जाएंगे, हमें गैप नहीं है तो इट विल इसको हिट किया तुरंत ये चलेगा. जैसे यहाँ पे 2 को हिट किया तो ये वहां पे रुक गया, 2 चलना शुरू, 3 को हिट करके यहाँ पे रुक जाएगा. तो 1 वाला यहाँ रुकेगा, 2 वाला यहाँ रुकेगा, 3 आगे चल पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट इज द आंसर 2. तो एक को हिट करके वहां पे रुक जाएगा वो, तो दूसरा चलेगा. गैप नहीं है तो जो है तो अपना फिर गैप मतलब गैप नहीं है पहले तो बाद में भी गैप नहीं रहेगा इसमें. तो ओनली 1 विल जस्ट गो. ऐसा नहीं होगा, ये आपस में स्टिक नहीं हो जाएंगे, इलास्टिक कोलिजन में स्टिक नहीं होते वो. ये तुमने देखा होगा लैब में या कहीं पर साइंस सेंटर्स में, ऐसे बहुत सारे वो रहते हैं ऐसे बॉल कनेक्टेड ऐसे. हाँ सर, उसी को इमेजिन करके बोला. यहाँ से आता है, इसको हिट करता है, ये सब रुक जाते हैं, ये वाला आगे जाता है, ये सब यहीं रुक जाते हैं. कैरम बोर्ड में भी देखो जब जोर से हिट करते हैं तो बिलियर्ड्स बॉल में ऑब्जर्व किया होगा, उतना आइडियल नहीं होती, फिर भी ऑलमोस्ट रुक जाता है ना. मासेस इक्वल होते तो एक रुक जाता है, एक आगे चला जाता है अगर हेड ऑन प्रॉपर कोलिजन है. क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. व्हाट अबाउट दिस? बोला है कि इसको आके इसने हिट किया, फिर वापस कितनी हाइट तक जाएगा ये, इसको हिट करने का कितना रिबाउंड होगा. दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? सेम हाँ मास सर. दिया है. इलास्टिक कोलिजन लेना है. बोलो. अरे अभी तो पढ़ा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा ऐसा, ये आगे उसकी वेलोसिटी चला जाएगा, तो इट विल नॉट बाउंस बैक जीरो, इट विल रिमेन, इट विल नॉट go to the any height, it will hit and come to the rest. It will hit and come to the rest. देखते क्या आंसर दिया. It transfers its entire momentum to the ball on the table and does not rise at all. वही अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि अपनी मोमेंटम पूरा ट्रांसफर करके वहीं रुक जाता वो.
वन बॉडी कम्स टू मीन्स वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। तो ये रुका हुआ था, ये रुका था, ये चल रहा था, तो अभी ये रुक जाएगा, ये चलने लगेगा, उसकी स्पीड से ये चलने लगेगा। गॉट इट? तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, इफ यू रिमेम्बर, अदरवाइज यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वेलोसिटी, फिर ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। v1 विल बी, उसकी जो वेलोसिटी आएगी v2 0 आ जाएगी, और u1 निकालना पड़ेगा उसको जब नीचे आएगा ना। नहीं, u1 तो 0 पर है, u2 निकालना पड़ेगा जो पेंडुलम नीचे आएगा, तो उससे निकालने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज दिस रिजल्ट एंड टेल कॉन्फिडेंटली, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट, पूरा सॉल्व कर लो, जैसे हमने डेरिवेशन किया वैसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और पढ़ लेना, कल डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे को। एक पॉइंट और बता देता हूँ, देखो अगर M2 बहुत बड़ा है, एक केस और देख लेते हैं, M2 इज वेरी बिगर, तो M2 भी सेकंड, ये सेकंड वाला बॉल बहुत बड़ा है सपोज ऐसे, फर्स्ट बॉल बहुत छोटा है ऐसा, तब क्या होगा? तो v1 कितना, फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी आएगी? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये m2 बहुत बड़ा है, तो नीचे वाला टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में m1 छूट जाएगा, देखो m1 विल बी लेफ्ट आउट, तो ये माइनस m2 ऊपर बचेगा, क्योंकि सपोज m2 इज 1000 kg, m1 इज 10 ग्राम, तो 1000 kg में 10 ग्राम प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको लीव कर सकते हैं m1 को। ऊपर m2 बचा, नीचे m1 प्लस m2, अभी वो भी m2 ही हो जाएगा, अगर हमने m2 में m1 ऐड कर दिया, m2 इज वेरी लार्ज, तो वो m2 के बराबर ही बचेगा ऑलमोस्ट u1, और यहाँ पे देखो m2 इज वेरी लार्ज, तो ये तुम्हारा u2, यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट रुक जाओ, m1 इज लेफ्ट आउट, ये m2 हो गया, नीचे भी m1 इज लेफ्ट आउट u1, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो m2, यहाँ पर m2 u2, नीचे जो है ऊपर आ जाएगा 2m2, नीचे भी m2 रह जाएगा, हाँ, और u2 समथिंग इज, ठीक है इन्होंने, ओके ठीक है, चलो ये u2 कर लो, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, माइनस u1 प्लस 2u2, और इसका v2 निकालो, डोंट राइट इट, जस्ट आई विल नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ठीक से लिखा दूंगा, पहले जस्ट चेक करने दो मुझे। v2 क्या आ रहा है, v2 में क्या आता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u2 प्लस 2m1 u1, 2m1 u1, तो m2 वेरी स्मॉल है, तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, और यहाँ भी m1 छूट जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 जो है सेकेंड बॉडी जो है अपने स्पीड से चलती रहेगी, जैसे u2 से चल रही थी, तो वो बाद में भी v2 भी उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसमें आके हिट करेगा, और ये इससे, अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे होती सपोज, तो ये बाउंस बैक हो जाता है, अभी बाउंस बैक नहीं हो रहा है, माइनस एनसीईआरटी बुक में उन्होंने वी रेस्ट पे लिया है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो बाउंस बैक लिखा है उन्होंने, ठीक है, इसको
वी कैन डिस्कस, रेस्ट में लेके बाद में डिस्कस कर सकते हैं इसको, ऐसा बोल सकते हैं। पहले रेस्ट में ले लो फिर डिस्कस करेंगे तो कुछ लॉजिकल आंसर आएगा, अदरवाइज जस्ट यू कैन स्किप दीज पॉइंट्स। दिस इज द मेन जो पॉइंट है, when both are equal, that is very useful point. Different way it is asked. कभी कभी ऐसे बोलेंगे m1 by m2 का रेशियो 1 है, तो what is the velocity after the collision? वही बात है, when ratio 1 है means both are equal, velocities will be interchange. ठीक है, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। क्वेश्चन कौन से मैंने बोले और चेक करने के लिए, एक क्वेश्चन ये देखना 7th, ट्राई करना, we'll discuss in the class, and then 8th based on these elastic collisions है ये सब। After that we will have some extra points, loss of energy देखेंगे and 2-dimension collision, then we'll start the next chapter। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो इसको, 8th and 7th। ठीक है, और पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है। All right, shall I end the class now? Any doubt is there, any difficulty? No sir. Okay then, chalo, thank you। Thank you sir. Okay, all right।